Morning students, I am engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Prasthan Academy Churu for the preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, Rai Sports School and RIMs. Students, it's class of reasoning and our topic is direction sense tests. And we have studied about the basic of direction sense test. Now we are in the practice exercise questions of direction sense test. Now the question number 7. Question number 7. In question number 7, now it's problem about the shadow situation. We have studied about the shadow situation at the time of sunrise. Sun rises in the east and shadow becomes in the west, and at the time of sunset, sun sets in the west and shadow becomes in the east. Now the question, एट सनराइज मतलब सनराइज के टाइम पे अमित एंड दीपक आर हैविंग ए कन्वर्सेशन कि अमित एंड दीपक आर टॉकिंग टू ईच अदर, बात कर रहे हैं वो स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर और स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर और एक दूसरे के किधर खड़े हैं, आमने सामने खड़े एंड टॉकिंग, बात कर रहे हैं. नाउ द कंडीशन, द शैडो ऑफ दीपक इज फॉर्म्ड टुवार्ड्स द राइट हैंड ऑफ अमित. द शैडो ऑफ दीपक, जो दीपक की शैडो है, दीपक शैडो फॉर्म्स टुवार्ड्स द राइट हैंड ऑफ अमित, जो अमित का जो राइट हैंड है उसकी तरफ क्या है, फॉर्म्स बन रही है. ठीक है. What is the direction दीपक facing? तो दीपक की what is the direction of दीपक facing, कि दीपक का फेस कौन सी साइड है या वो कौन सी डायरेक्शन में फेसिंग है, मतलब उसका फेस कौन से डायरेक्शन में, ये अपन को पूछा है. तो देखिए आइए, एट सनराइज, कि सनराइज के टाइम पे अमित एंड दीपक are having a conversation and standing in front of each other. एक दूसरे के in front of each other, आमने सामने खड़े हैं. In front of each other मतलब means facing, not facing in same direction, means facing in opposite direction. In front of each other का means हो गया कि front of each other means facing in opposite direction, मतलब उनके फेस हैं वो क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तभी तो वो इन फ्रंट ऑफ ईच अदर होंगे. मतलब इफ दीपक इज फेसिंग इन साउथ देन अमित इज फेसिंग इन नॉर्थ, देन द बोथ बिकम्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, और दीपक फेसिंग इन नॉर्थ, अमित फेसिंग इन साउथ. ओके. नाउ द कंडीशन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल draw the directions north, south, east, west. Condition is at the time of sunrise, कि जो क्वेश्चन है उसमें वो आपको कंडीशन दे रखी है, वो एट द टाइम ऑफ सनराइज. सनराइज के टाइम की है, मतलब सन राइजेज इन द ईस्ट, तो हेयर इज सन एंड इट the condition at the time of sunrise and sunrise, and sun is in the east. Okay. Now in the question both are having conversation and facing in front of each other. The shadow of Deepak is formed towards the right hand of Amit. Both are facing each other in front of each other. Then
sun rises in the east, and just imagine here is Deepak and here is Amit. Both are facing each other, means facing each other. Here is faces in opposite direction to each other. Now, what is the condition? See, the shadow of Deepak is formed towards the right hand of Amit. Now, just see, sun rises in the east and the shadow becomes in west. Then the shadow of both Amit and Deepak are in the west, means just see, here is Deepak's shadow, दीपक की शेडो हो गई, एंड हेयर इज अमित शेडो. बिकॉज सन राइजेज इन ईस्ट, सन है वो ईस्ट में राइज होता है और शेडो किधर रहती है, वेस्ट में. ये वेस्ट में हो गई शेडो. हेयर इज अमित शेडो. ओके, नाउ वी जस्ट इमेजिन, हमने सिर्फ इमेजिन किया है. नाउ देखिए, अब देखिए अपन ने जो ड्रॉ किए हैं वो देखिए. Deepak is facing in which direction? South. Amit is facing in north. So, if Amit is facing in north direction, it means north में Amit का face है, तो here is its right. अगर अमित का फेस नॉर्थ में है तो राइट इस डायरेक्शन में होगा एंड लेफ्ट इस डायरेक्शन. ओके, Deepak is facing in south, then his right in this direction and left in this direction. We have studied about the right and left of all the directions. Then see, अब आप कंडीशंस देखिए क्वेश्चन में क्या है. द शेडो ऑफ दीपक इज फॉर्म टुवार्ड्स द राइट हैंड ऑफ अमित. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द शेडो ऑफ दीपक फॉर्म्ड, कि जो दीपक की शेडो है वो फॉर्म हो रही है टुवार्ड्स द राइट हैंड ऑफ अमित. ये कंडीशन आपको दे रखी है. तो देखिए, हेयर इज दीपक एंड इट्स द शेडो ऑफ दीपक, इट्स द शेडो ऑफ दीपक एंड इट इज फॉर्मिंग. ये फॉर्म कौन सी डायरेक्शन में हो रही है? टुवार्ड्स द लेफ्ट हैंड ऑफ अमित. अमित के लेफ्ट हैंड में हो रही है ना, कि दीपक की शेडो ये हो गई और ये अमित हो गया. तो अमित, दीपक की शेडो क्या अमित के लेफ्ट हैंड की साइड फॉर्म हो रही है. बट अपन को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या दे रखा है? द दीपक, द शेडो ऑफ दीपक फॉर्म टुवार्ड्स द राइट हैंड ऑफ अमित. कि जो दीपक शेडो है वो अमित के राइट हैंड की साइड फॉर्म हो रही है. मीन्स जो अपन ने इमेजिन किया है दीपक इज फेसिंग इन साउथ एंड अमित इज फेसिंग इज नॉर्थ इज रॉन्ग. नाउ वी चेंज, वी अप्लाई द सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन, now in second condition, now we see in second condition. Now in second condition we replace Deepak by Amit. Now Amit is facing in south direction and Deepak is facing in north direction. Second condition. Then here is Amit's shadow and here is Deepak's shadow. जो शेडो होंगी वो बोथ आर इन वेस्ट डायरेक्शन. शेडो क्या है? दोनों ही वेस्ट डायरेक्शन में होंगी, चाहे फेस कोई भी डायरेक्शन में
हो, ठीक है। नाउ सी द कंडीशन। नाउ द here is Deepak's left, here is Deepak's right, here is Amit's right and here is Amit's left. Now the condition is the shadow of Deepak is formed towards the right hand of Amit. जो दीपक की शेडो है वो अमित के राइट हैंड की साइड फॉर्म हो रही है। देखिए ये दीपक की शेडो है और ये अमित का क्या है, राइट हैंड है। मतलब नाउ अभी ये दोनों क्या है, सही कंडीशन में खड़े हैं। ओके, बिकॉज द कंडीशन इज फुलफिल्ड। कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन? द शेडो ऑफ दीपक टुवर्ड्स द राइट हैंड ऑफ अमित। नाउ सी द शेडो ऑफ दीपक and it's the right hand of Amit, both are in same direction. Now the condition is fulfilled. Now see what direction is Deepak facing. अब अपनी कंडीशन फुलफिल हो गई है तो अब क्वेश्चन देखिए, व्हाट डायरेक्शन इज दीपक फेसिंग, कि दीपक कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो दीपक कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो देखिए दीपक का फेस कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ। इट्स द आंसर। इन विच डायरेक्शन दीपक इज फेसिंग, दीपक इज फेसिंग इन नॉर्थ। आपको पूछ लेता इन विच डायरेक्शन अमित इज फेसिंग, तो अमित इज फेसिंग इन साउथ। ओके, तो इट्स इजी, समझ आ गया होगा आपको। ओके, नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइम ऑन द वॉच इज 9:15 and the hour hand points towards the west. तो टाइम इन वॉच की एक वॉच है, उसमें टाइम क्या है, 9:15, 9 o'clock and 15 minutes, and the hour hand points towards west. जो हावर हैंड है वो पॉइंट्स टुवार्ड्स क्या है, वेस्ट। उसकी डायरेक्शन क्या है, वेस्ट है। देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मिनट हैंड, तो जो मिनट हैंड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ओके, देन सी व्हाट इज टाइम इन द वॉच, 9 and 15, and we start the next question, question number 8. Question is at the time on a watch is 9:15. It's the watch 9:15. Here is 12 in watch, here is 6, here is 9 and here is 3. 9:15 means hour hand is here and minute hand is here. 9:15 पे यही सिचुएशन होती है क्लॉक में, क्या रहता है, जो आवर हैंड है वो क्या है, 9 को फेसिंग रहता है, 9 की डायरेक्शन में रहता है, एंड द मिनट हैंड है वो क्या है, 3 की डायरेक्शन में रहता है। ओके, तो ये अपन ने बना ली। द टाइम ऑन द वॉच इज 9:15। नाउ सी हियर इज 9:15 नाउ, एंड द हावर हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स वेस्ट। देखिए डायरेक्शंस में हावर हैंड की डायरेक्शन क्या आ रही है, वेस्ट आ रही है मीन्स इट्स ओके। नाउ अब अपन को पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो देखिए क्वेश्चन में आपको पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मिनट हैंड। जो मिनट हैंड है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये तो आवर हैंड हो गया और मिनट हैंड ये हो गए। तो मिनट हैंड की डायरेक्शन देखिए, आवर हैंड की वेस्ट है इन दिस डायरेक्शन, मीन्स मिनट हैंड की ये डायरेक्शन है, मीन्स मिनट हैंड की डायरेक्शन क्या हो गई, ईस्ट। ओके, इजी है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो देन द आंसर इज ईस्ट। ओके, नाउ वी कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 9. What is the question number 9? Question number 9 है, if the southwest becomes north,
इफ़ द साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी। जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो नॉर्थ हो जाएगी। देन व्हाट विल द नॉर्थ ईस्ट बी, तो जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी। नाउ सी, इसमें क्या है, जो अपन ने पहले एंगल ऑफ मूवमेंट पढ़ा था उस कंसेप्ट पे बेस्ट क्वेश्चन है। तो अपन को क्या है, डायरेक्शंस को एक्सचेंज करना है इसमें। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द ऑल डायरेक्शंस, देन these are the directions, these are main directions, okay, north, south, east and west, and these are cardinal directions, these are cardinal directions. Cardinal directions are northwest, northeast, southeast and southwest. Okay. Now in the question, if the southwest becomes north, कि जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो इट बिकम्स नॉर्थ, साउथ वेस्ट डायरेक्शन नॉर्थ हो जाएगी। इट्स मीन्स साउथ वेस्ट है वो रोटेट होके नॉर्थ को रिप्लेस कर लेगी। ओके, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो रोटेट होके नॉर्थ को रिप्लेस करेगी, तो वो क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगी। कितने डिग्री में मूवमेंट करेगी, 45 एंड 45 90 एंड 45 135 डिग्री। साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो रोटेट होगी कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी। तो कितने डिग्री होगी, 135 डिग्री, और किसको रिप्लेस कर लेगी, नॉर्थ को रिप्लेस करेगी। नाउ द साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, हो गया। अब देखिए, अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो नॉर्थ को रिप्लेस करने के लिए 135 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होगी, तो जो ऑल डायरेक्शन है, ऑल अदर डायरेक्शन है, वो भी क्या होंगी, 135 डिग्री ही क्लॉकवाइज रोटेट होंगी एंड दे रिप्लेस द अदर डायरेक्शंस। तो देखिए, साउथ वेस्ट को रोटेट किया और नॉर्थ को रिप्लेस किया। ओके, देन द साउथ वेस्ट बिकम्स हेयर। नाउ वी रोटेट द वेस्ट, वेस्ट rotates for 135 degree and it replace north east. Now the west becomes here. Okay, now northwest rotates for 135 degree and northwest becomes here. Okay, now southwest rotates north rotates 135 degree and it replace southeast. Okay, now the northeast rotates for 135 degree and it replace south. Now the east rotates for 135 degree and it replace southwest. Now the southeast rotates for 135 degree and it replace west. Now the south rotates for 135 degree and it replace northwest. Now the all direction rotate for 135 degree and in clockwise direction. Okay, now what is asked in question, then what will northeast be? तो क्या आपको क्या पूछा है कि ये रोटेशन होने के बाद if southwest becomes north then what will be northeast be, कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट कौन से डायरेक्शन में आ गया, आपके साउथ में आ गया, देन द आंसर इज साउथ। ओके, इजी है। आपको पूछ लेता व्हाट विल द नॉर्थ बिकम,
व्हाट विल द नॉर्थ रिप्लेस, तो नॉर्थ कौन सा हो जाता, साउथ, ईस्ट हो जाता। ओके, इजी है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में और खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।